سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سبحان اللہ، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں لکھتا ہوں نعت پاک، سرکار آپ ہی کی میں لکھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی۔ اور یہ شعر سنیے آپ سب کی جانب سے، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سارے لوگ، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے، نعرہ تکبیر، اب آپ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا۔ اچھا آپ کے یہاں سرکار آ جائیں، آپ دعوت دیں اور سرکار آ جائیں تو کیا اچھا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا، تو پھر بولتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ سبحان اللہ، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، اور سرکار وہ ملے تو قدم چوم لوں اس کے، سرکار وہ ملے تو قدم چوم لوں اس کے، سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی، سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی، سرکار وہ ملے تو قدم چوم لوں اس کے، سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی۔ اور آپ کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار پل صراط پر تشریف لائیے، یا رسول اللہ، اشعار بہت ہیں مگر آخری شعر پڑھ رہا ہوں، سرکار پل صراط پر تشریف لائیے، سرکار لاج رکھیے، یہ امت ہے آپ کی، سرکار لاج رکھیے، یہ امت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جو باتیں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں آپ توجہ کے ساتھ سنیے، میں ایک لمحہ بھی آپ کا وقت برباد کرنا نہیں چاہتا۔ حضرات 10:40 ہونے والے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی 40 سے 45 منٹ بات کرنی ہے، ذکر کی رات ہے، آج آپ کو شب بیداری بھی کرنی ہے، لیکن چائے پی کے شب بیداری مت کیجئے گا، گھوم کے شب بیداری مت کیجئے گا۔ شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت مصلی پہ گزرنا چاہیے، آپ کا وقت ذکر میں گزرنا چاہیے، آپ کا وقت قرآن کی تلاوت میں گزرنا چاہیے، آپ کا وقت تسبیح میں گزرنا چاہیے۔ آئیے ذکر کی رات ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم سب مسلمان ہیں نا، مسلمان کے لیے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ مسلمان اسلامی زندگی کیسے جیے گا، اسلام ہمیں کیسے جینے کے لیے سکھاتا ہے، اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو کیسے جینے کے لیے کہا ہے، یہ بات کا جاننا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے بھی ضروری ہے، دنیا میں جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، اللہ کا بے پناہ کرم ہے، دنیا کی ہر قوم نے مسلمانوں سے جینے کا سلیقہ سیکھا ہے، اس لیے ہمارا کردار بڑا اونچا ہونا چاہیے، ہمارا کریکٹر بڑا بلند ہونا چاہیے، ہمارا کردار بڑا ستھرا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی جیتے ہوئے دیکھے تو دوسری قوموں کو جینے کا سلیقہ حاصل ہو جائے۔ حضرات ہمیں کیسے اسلام جینا سکھاتا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، اسلام کیسے کھانا سکھاتا ہے، اسلام کیسے پانی پینا سکھاتا ہے، اسلام کیسے مسکرانا سکھاتا ہے، اسلام کیسے سفر کرنا سکھاتا ہے، اسلام کیسے بزنس کرنا سکھاتا ہے، اسلام کیسے تجارت کرنا سکھاتا ہے، اسلام کیسے دکان چلانا سکھاتا ہے، اسلام کیسے بچوں کی تربیت کرنا سکھاتا ہے، اسلام کیسے زندگی جینا سکھاتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور جاننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ہم میں سے پڑھنے والے کوئی بھی تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو بتائیے، پڑھیں گے تب جانیں گے کہ اسلام ہمیں کیسے جینے کے لیے سکھاتا ہے، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ہم میں سے ہے کوئی ایسا آدمی جو ہر روز 5 منٹ سیرت کی کتاب پڑھتا ہو، مصطفیٰ کی زندگی 5 منٹ پڑھ لیا کرتا ہو،
है हम में से कोई जो इस्लाम की तारीख 5 मिनट हर रोज पढ़ता हो, है हम में से कोई जो मसले की किताब 5 मिनट हर रोज पढ़ लिया करता हो? हम में कोई नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो पढ़ेंगे कहाँ से? दुकान चलाने वाला सुबह होते ही अपनी दुकान खोल कर बैठ जाता है, बिजनेस करने वाला सामान्य तिजारत लेकर अपने घर से सुबह होते ही निकल जाता है, सर्विस करने वाला 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, खेती बाड़ी करने वाला अपने खेत पर चला जाता है, मजदूरी करने वाला सुबह होते ही अपनी मजदूरी करने के लिए किसी चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसको टाइम कहाँ है कि मुताला करे? शाम को थका हारा इंसान होता है, घर वापस होता है, रात में आराम करता है, सुबह होती है फिर अपने अपने कामों में सब लग जाता है। कहाँ वक्त है कि हम मुताला कर सके, कहाँ वक्त है कि हम किताब पढ़ सके? हजरात, आपकी उम्र 30 साल को पहुंच गई है, आपकी उम्र 35 साल को पहुंच गई है, आपकी उम्र 40-45 साल को जा चुकी है, आपकी उम्र 50 से 60 साल की हो चुकी है। आप न मकतब जा रहे हो, न आप मदरसा जा रहे हो, न किसी तरबियत गाह में जा रहे हो। बताओ फिर इस्लाम कहाँ सीखने जाओगे? कहाँ सीखेंगे कि इस्लाम हमें जीना कहाँ से सिखाता है? हजरात, हम पढ़ तो नहीं सकते हैं तो फिर जीना भी सीखना है, फिर पढ़ेंगे नहीं तो जीना सीखेंगे कैसे? हजरात, बुजुर्गों ने इसीलिए जिक्र की महफिल सजाने को रिवाज दिया है। थोड़ी देर अल्लाह और रसूल के नाम पर बुला लो लोगों को, रात आराम करने के लिए अल्लाह ने बनाई है, थोड़ी देर के लिए रात के हिस्से में बुला लो। एक खतीब खिताबत करेगा, एक मुकर्रिर तकरीर करेगा, एक वाइस बयान करेगा। एक महीना पढ़ने से जितनी बातें मालूम नहीं होती है, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें लोगों को मालूम हो जाती है। अब अगर यहाँ आने के बाद भी पूरी रात हम नारे लगाकर खत्म कर दें तो बताओ सीखने का मौका कहाँ मिलेगा? पूरी रात नतीजे सुना कर अगर जलसों को गुजार देंगे तो बोलो कि हमें इस्लाम सीखने का मौका कहाँ मिलेगा? इसलिए ऐसी मजलिस में जब आए तो तवज्जो के साथ एक आलिम की गुफ्तगू सुना कीजिए ताकि इस्लाम कैसे हमें जीना सिखाता है ये हमें मौका मिल सके। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हज़रात, अब आज मैं थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहता हूँ, जी लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा। मैं पहले आपको जरा तैयार कर लेना चाहता हूँ, जरा तवज्जो से मेरी एक एक जुमले को आप समाप्त कीजिएगा। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम अगर आपसे ये सवाल करें कि मुस्तफा जाने रहमत से कितने लोग मोहब्बत करते हैं तो मेरा ख्याल है कि सारे लोग हाथ उठा देंगे, अगर नहीं तो मैं देख ही लेता हूँ। कितने लोग हैं जो अपने आका से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए। हज़रात गिरामी, अब हाथ नीचे कर लीजिए। यहीं पर रुककर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आपने अपने आका को देखा नहीं है, आपने अपने आका की सूरत नहीं देखा, आपने अपने आका का चेहरा नहीं देखा, मगर मोहब्बत का तरीका यह है कि अगर उस नबी की कोई गुस्ताखी करे तो हम अपनी जान देकर मुस्तफा जाने रहमत के गुस्ताखों का सर कलम करने को तैयार हो जाते हैं। अपने आका की मोहब्बत में हम जान गंवाने को तैयार हो जाते हैं, जबकि देखा भी नहीं है। आइए अब जी लगाइए जो मैं बताना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मुझसे अच्छी तकरीर भी आपके सामने कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आज आपने मुझको बुलाया है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इन उलमाए किराम को नहीं सुना रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि ये लोग तो मुझको सुनाया करते हैं तो इन्हें कैसे सुनाऊंगा? मैं आपको सुना रहा हूँ। मौलाना अशरफुल कादरी साहब जरा सा दुआ फरमा दीजिए आप, ताकि मैं थोड़ी सी बातें कर सकूं। हज़रात तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा ताकि आज के जिक्र की रात जो है इसका कोई गोशा छूटने ना पाए। आपने मोहब्बत की है अपने आका से, आपने अपने आका से मोहब्बत की है, आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरे आका ने सहाबा की अंजुमन में अर्ज किया, इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबियों, ए मेरे सहाबियों, क्या मैं उस शख्स की बात न करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? सुभान अल्लाह। क्या मैं उसकी बात न करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? वही सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, वही फारूक आजम भी है, वही उस्मान गनी भी है, वही मौलाए कायनात भी है, वही हजरत तलहा भी है, वही हजरत जुबैर भी है, वही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी है, सारे के सारे वही मौजूद। मेरे आका ने फरमाया, क्या उसकी बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? सिद्दीक़ अकबर ने शायद ये सोचा होगा, आका लगता है मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, इसलिए कि यारे गार मैं हूँ, खलीफे अव्वल मैं हूँ, मेरे गार मैं हूँ, आका से मोहब्बत मैं करता हूँ, इसलिए आका मेरी बात करेंगे। और ये सोच सोच कर सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराने लगे, उधर फारूक आजम भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ये सोचा आका से तो मैं मोहब्बत करता हूँ, और मेरे आका ने ये फरमाया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते,
लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, मैं आका से मोहब्बत करता हूँ। उस्मान गनी ये सोच रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, इसलिए कि मैं आका से मोहब्बत करता हूँ। आका ने अपनी 2 बेटियों को मेरे निकाह में दिया है, इसलिए लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। मौला अली भी अलग खड़े मुस्कुरा रहे थे और वो ये सोच रहे होंगे कि आका तो मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, इसलिए कि कायनात में मुस्तफा जाने रहमत को जो सबसे ज्यादा अजीज है वो फातिमा जहरा की जात है, और वो फातिमा जहरा मेरे निकाह में मेरे आका ने दिया है। बहुत अच्छे मोहब्बत की बात करेंगे। सहाबा सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं, आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। मेरे आका ने मुस्कुराने का जायजा ले लिया, सारे लोगों की मुस्कुराहट का जायजा ले लिया। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तेरी मोहब्बत की बात करूंगा, उमर आप ये सोच रहे हो कि आपकी मोहब्बत की बात करूंगा, उस्मान आप ये सोच रहे हो कि आपकी मोहब्बत की बात करूंगा, अली आप सोच रहे हो कि आपकी मोहब्बत की बात करूंगा। अबू बकर मोहब्बत तो करते हो, इससे इनकार नहीं है। अबू बकर आप भी मोहब्बत करते हो, उमर आप भी मोहब्बत करते हो, उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, अली आप भी मोहब्बत करते हो, मगर अबू बकर आपकी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हो, उमर आपकी मोहब्बत की बात नहीं करूंगा, उस्मान आपकी मोहब्बत की बात नहीं करूंगा, अली आपकी मोहब्बत की बात नहीं करूंगा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मोहब्बत तो अबू बकर भी करते हैं, मोहब्बत उमर भी करते हैं, मोहब्बत तो उस्मान भी करते हैं, मोहब्बत तो अली भी करते हैं, मोहब्बत तो हजरत तलहा भी करते हैं, मोहब्बत तो हजरत ज़ुबैर भी करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह अगर हमारी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे तो वो कौन खुश नसीब है जिसकी मोहब्बत की बात करने जा रहे हैं, वो कौन मुकद्दर का धनी है जिसकी मोहब्बत की बात आप करने जा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, सच्चाई तो यही है कि तुम लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर तुमने मोहब्बत कब किया है? मेरी सूरत को देखा तो मोहब्बत किया, मेरा चेहरा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, मेरा किरदार देखा तो मोहब्बत किया, मेरा कैरेक्टर देखा तब मोहब्बत किया, मेरा मेराज में जाना देखा तब मोहब्बत किया, कंगनी को कलमा पढ़ते देखा तब मोहब्बत किया, सूरज को पहचानते हुए देखा तब मोहब्बत किया है, चांद को 2 टुकड़े करते हुए देखा है तब मोहब्बत किया है। ए मेरे सहाबियों आपने तो देख देख के मोहब्बत किया है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसने देखा नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, देखा नहीं है मगर प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत आशिक़े मुस्तफा हज़रत अवैस करनी। देखा नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं निसार हो गई, देखा नहीं लुट गई, देखा नहीं निसार हो गई। कौन है मेरे आका? मेरे आका फरमाते हैं वो कोई और नहीं है, अवैसे करनी की बातें गिरानी है, वो हजरत अवैस। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, तवज्जो है ना अपना? कितने लोग सुन रहे हाथ उठा के? मजमा गौर से सुन रहा है। क्या जरूरत थी? मेरे आका ने एक रोज मौलाए कायनात और हजरत उमर को बुलाया और अपना खरका मुबारक, कुर्ता मुबारक उतार के पेश फरमाया और क्या कहा मौला अली से और हजरत उमर से, आप दोनों बुजुर्ग तशरीफ ले जाएं, ये मेरा खरका उस शख्स को देंगे जिसका नाम अवैसे करनी है। देने के बाद उनसे कहेंगे कि इसे ज़ेबतन कर ले, अल्लाह अल्लाह, और फिर उनसे कहेंगे कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए वो दुआ करे, मग़फ़िरत की दुआ करे। या रसूल अल्लाह, किससे दुआ करवाने की बात कर रहे हैं आका? अल्लाह अल्लाह, किससे? हजरत अवैस, हजरत अवैसे करनी से। मैं सवाल करना चाहता हूँ, गौर से सुनिए तो बात समझ में आएगी, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। बेशक बेशक, मेरे आका तो नबियों के नबी है ना, हक है, मेरे आका रसूलों के रसूल है ना, बेशक, मेरे आका पैगंबरों के पैगंबर है ना, मेरे आका तो महबूबे खुदा है ना, बेशक, मेरे आका तो मेराज के दूल्हा है ना, बेशक, मेरे आका तो शाफ़ए महशर है ना, हक है, कहीं से जिंदगी में कोई कमी ही नहीं है। मुस्तजाब दावत तो मेरे
मुस्तफा की ज़ात गिरामी है। आज तक कोई बात ऐसी लगी है जो मुस्तफा ने दुआ की हो और दुआ रद्द कर दी गई हो। जब भी मेरे आका ने दुआ की है खुदा की बारगाह में, तो परवरदिगार ने अपने महबूब की दुआ कबूल फरमाई है। अब हम सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, आप अवैसे करनी से दुआ करवाने की बात कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, क्या आपकी दुआ में असर नहीं है? क्या आपकी दुआ में तासीर नहीं है? क्या आपकी दुआ कबूल नहीं होती है? या रसूल अल्लाह, आपकी तो दुआ भी कबूल होती है, आपकी दुआ में तासीर भी है, आपकी दुआएं तो मकबूल भी होती है, फिर क्या बात है कि वैसे करनी से दुआएं मग़फ़िरत करवा रहे हैं अपनी उम्मत के लिए? अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए आपकी दुआ काफी है या रसूल अल्लाह। आप खुद ही क्यों नहीं दुआ फरमा लेते? आप वैसे करनी से कह रहे हैं, जबकि वैसे करनी कोई रसूल नहीं है, वैसे करनी कोई पैगंबर नहीं है, वैसे करनी कोई रसूल नहीं है, वैसे करनी कोई नबी नहीं है। आपकी उम्मत का एक फर्द है, वो उम्मती है। अपनी उम्मत से आप दुआ करवाने की बात कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ वो नबी नहीं है, हाँ हाँ वो रसूल नहीं है, हाँ हाँ वो पैगंबर नहीं है, लेकिन वो माँ की खिदमत करता है। जब माँ की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, आवाज बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिक़े मुस्तफा हज़रत अवैस करनी, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। यही पर रुक कर एक बात और अर्ज करते हैं। मेरे आका क्या फरमाते हैं कि वो माँ की खिदमत करता है, और जो माँ की खिदमत करता है उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। हम जाते हैं बड़े बड़े पीर साहब से दुआ करवाने के लिए, पीर साहब आ जाएं तो पीछा नहीं छोड़ते, नजराना दे के दुआ करवाते हैं। मैं कहता हूँ हजरात, एक रोज़ जब परेशान हो जाओ, जब मुश्किल में घिर जाओ, 100 रुपये हाथ में रखना, अपनी अम्मी के हाथ में डाल देना और कहना अम्मा दुआ कर दो मेरे लिए। खुदा की कसम, दुनिया में सबसे बड़ा पीर अगर कोई तेरा है तो वो तेरी माँ है, वो तेरा बाप है। हक है, हक है। अच्छा, बाप की तो कदर ही नहीं करते लोग। गौर से सुनिएगा, एक अहम बात पेश कर रहा हूँ। कोई बात तो बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, तमाम लोग गौर से सुन रहे हैं। हजरात, बाप की तो लोग कदर ही नहीं करते। अच्छा, माँ को तो किसी हद तक चलो माँ है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी खिदमत करते हैं, मगर बाप को सोचते हैं अरे भाई क्या बाप है। मौलवी लोग तो बाप की बात भी नहीं सुनाते हैं। बाप की फजीलत क्या है, बाप का मकाम क्या है, मगर तुझे पता नहीं है। तेरी माँ ने जन्म जरूर दिया है तुझे, मगर तेरे बाप ने ऐसा पाला, तू बीमार हो गया तो कंधे पे उठा के डॉक्टर के पास तेरा बाप लेके गया था। जब तू स्कूल जाता था ना तो तेरा बस्ता अपने कलेजे, अपने पीठ पे रख करके तुझे स्कूल पहुंचाने वाला तेरा बाप होता था। तुझे भूख लगती थी ना, तेरे रिस्क का इंतजाम करने के लिए चिलचिलाती हुई धूप में तिजारत करने के लिए तेरा बाप जाया करता है। तुझे पता नहीं कि तेरा बाप कैसा है, तेरे बाप का मकाम क्या है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तेरा बाप हो सकता है गुनहगार कह के आप नजरअंदाज कर दो कि ये मेरा बाप है जो नमाज भी नहीं पढ़ता है, तिलावत भी नहीं करता है, गुनहगार है। गुनहगार कहते तुम अपने बाप को नजरअंदाज कर सकते हो, मगर शायद तुझे पता नहीं है जिस बाप को तुम नजरअंदाज करके जैसे आजम का नारा लगाते हो, गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हो, तेरा बाप गुनहगार हो सकता है, तेरा बाप खताकार हो सकता है, लेकिन तेरे लिए तेरा बाप गौसे आज़म की हैसियत रखता है, तेरा बाप तेरे लिए गरीब नवाज की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला जवाली, नारे तकबीर। क्या खिला रहे हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। परेशान नहीं है हम, अल्लाह अल्लाह, हम नहीं है परेशान, अल्लाह। हर कोई परेशान है। सब कुछ आपके पास है, दौलत है, सरमाया है, गाड़ी है, घर है, तिजारत है, सब कुछ है, परेशान है। नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, बिस्तर पे जाते हैं चैन नहीं मिलता है, बिस्तर पे जाते हैं नींद नहीं आती है, सुकून ही नहीं है। कहाँ से सुकून मिले? अल्लाह अल्लाह। दौलत में सुकून नहीं है, सुकून दौलत में नहीं है।
सुकून मोटे गद्दे पे नहीं मिलता है, सुकून सरमाए के ढेर में नहीं मिलता है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में मिलता है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में मिलता है, करार तो अल्लाह के जिक्र में मिलता है। कभी जिक्र की महफिल सजा के तो देखो, अपने घर में तन्हा रहो मगर एक अंजुमन सजाओ अपने दिल में मुस्तफा के जिक्र की, अल्लाह के जिक्र की अंजुमन सजाओ, तन्हा रहो जिक्र में लग जाओ, देखो सुकून कैसा मिलता है, देखो करार कैसा मिलता है। अगर आपको यकीन ना आए तो तजर्बा कर लेना। अगर दुनिया में हर कोई आपको नजरअंदाज कर दे, कोई आपको सलाम करने वाला ना हो, कोई आपसे हाथ मिलाने वाला ना हो, आपकी गरीबन आपकी गुर्बत देखकर आपसे दूर रहा करता हो, जब परेशान हो जाओ, जब मुसीबत में घिर जाओ तो आप कैसे सुकून तलाश करोगे, बेचैनी कैसे दूर होगी, जब ये महसूस करो सारा आलम सो रहा है, सारा मोहल्ला सो रहा है, रात के 1 बजे 2 बजे अपने बिस्तर को छोड़ देना, वजू कर लेना, वजू करके मसल्ला बिछा लेना, 2 रकात नमाज अदा कर लेना, थोड़ा सा जिक्र करना, फिर खुदा की बारगाह में दुआ करना। जब दुआ करोगे तो ये महसूस करोगे कि इस वक्त अपने रब से बातें कर रहा हूँ, इस वक्त अपने परवरदिगार से बातें कर रहा हूँ। जब ये दूर होगा तेरी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, तेरी आंखों से जब पानी बहना शुरू होगा, आंसू के कतरे तेरी गोद में बाद में पहुंचेंगे, रब तेरा पहले राजी हो जाएगा, तुझे सुकून मिल जाएगा, तुझे करार। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। अल्लाह के जिक्र के करार मिलता है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से चैन मिलता है। आप जिक्र की महफिल में बैठे हो, क्या बेचैनी है आपको? सच बोलिएगा, बेचैनी है? कितने लोग बेचैन हैं, जरा हाथ उठाइए तो देखें। कोई बेचैनी नहीं है, सब चैन में, सबको करार मिल गया है, सबको इत्मीनान हासिल हो गया है। क्यों? इसलिए कि आप जिक्र में लगे हुए। अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो गोया आप भी जिक्र ही में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, में सुनाता हूँ कि जिक्र का फायदा क्या मिलता है। आज हम परेशान हैं अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा, बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? दवाखाना जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से राब्ता करते हैं। किस लिए? ताकि जिए, मरने ना पाए, इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ताकि मरे नहीं, जी जाए। जीने का कहाँ, जीने का इरादा लेके चलते हैं डॉक्टर के पास, अल्लाह, ताकि हम जिए। अल्लाह, मरना नहीं है अभी, मरने को जी नहीं करता है, जीने को तबीयत चाहती है। डॉक्टर से राब्ता करो, हकीम से राब्ता करो। बीमार हो गया हो, आओ, मैं आपसे कहता हूँ, सुनो, डॉक्टर तेरे मर्ज को दूर तो कर देगा मगर जिला ना सकेगा। अल्लाह, जिला ना सकेगा, तेरी मौत का वक्त मुकर्रर है। लेकिन अगर खुदा चाह ले, खुदा चाह ले तो तेरी तकदीर आज की रात बदल सकती है। अगर खुदा चाहे तो तेरा मुकद्दर आज की रात बदल सकता है, तेरा नसीबा बदल सकता है, तेरी तकदीर नई लिखी जा सकती है। आज की रात कैसे? और आज की क्या रात है? अगर जिक्र में लगे रहोगे तो खुदा के जिक्र से उनमें बरकतें होती है। डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराने वालों और जिंदगी जीने का हौसला पैदा करने वालों, आओ जिक्र का फायदा सुनाता है। खुदा के जिक्र से करार मिलता है, खुदा के जिक्र से सुकून मिलता है। गौर से सुनिए, तवज्जो है ना आपकी? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठा के बताएं तो। अच्छा, वो लोग जो बोल रहे हैं वो लोग भी सुन रहे हैं क्या? आप लोग भी जरा सा हाथ उठा दीजिए तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, हज़रात, भी तो मैं शुरू हुआ हूँ, सुनिए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिक्र से
इंसान को करार मिलता है। हर आदमी सुकून चाहता है ने जी, हर आदमी करार चाहता है, हर आदमी चैन चाहता है। जिंदगी में सुकून ही पाने की खातिर तो इंसान इतनी मेहनत करता है भाई, लेकिन उसके बावजूद सुकून नहीं मिलता, उसके बावजूद करार नहीं मिलता। दौलत जमा करो ताकि सुकून मिले, पैसे कमाओ ताकि सुकून मिले, तजारत करो ताकि सुकून मिले, जरूरत भी पूरी हो, सुकून भी मिले, मगर सुकून नहीं मिलता। नोटों के गद्दों पे सोने वाले को भी सुकून नहीं मिल रहा है। मोटे मोटे गद्दे हम खरीद लेते हैं ताकि सुकून मिले, मगर सुकून नहीं मिलता। हमें नींद नहीं आती, करार नहीं मिलता। आप मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, आज एक वली कामिल के जिक्र की महफिल में आप बैठे हो, वली कामिल के उर्स के मौके से आपने ये जश्न सजाया है। हजरात सुनो, एक वली की बात मैं बताता हूँ। वली जो होता है वो दिलों का हाल मालूम कर लेता है, जो वली होता है वो दिल की कैफियत को जान लेता है, वली जो होता है आपके मन की बात वो कर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की तस्वीर पढ़ रहा था, अल्लाह के जिक्र में मगन था, अल्लाह की यादों में मगन था, तस्वीर पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गौर से सुनिएगा तो सबक हासिल होगा। मियां मोहम्मद बख्श एक अल्लाह का वली है। वो फरमाते हैं, बैठकर अल्लाह का जिक्र में मैं मगन था, अल्लाह के जिक्र में मगन था, मशगूल था, जिक्र कर रहा था, तस्वीर पढ़ रहा था। अचानक मैंने क्या देखा, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा था, जिस दरख्त के नीचे बैठा था, उसके सामने में एक और दरख्त था, और उस दरख्त के ऊपर घोंसले में एक चिड़िया बैठी हुई थी, एक फाख्ता बैठी हुई थी, एक चिड़िया बैठी हुई थी। घोंसले में बैठकर वो भी तस्वीर पढ़ रही थी। एक चिड़िया है मगर तस्वीर पढ़ रही है, एक जानवर है मगर तस्वीर पढ़ रही है, एक परिंदा है मगर तस्वीर पढ़ रहा है। वो अल्लाह का जिक्र कर रही है वो चिड़िया। अल्लाह को अकबर। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, वो भी पढ़ रही थी, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रात जरा सोच के तो देखो, पढ़ रही थी वो चिड़िया, मगर पता चल गया अल्लाह के वली को, पता चल गया अल्लाह वाले को, पता चल गया अल्लाह के मुकद्दस बंदे को। वो चिड़िया भी बोल रही है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। वो चिड़िया तस्बीह में मगन थी, अल्लाह की याद में मगन थी, वो अल्लाह के जिक्र में मगन थी। अचानक एक शिकारी आता है, हाथ में तीर कमान लिए हुए, और उस शिकारी की नजर उस चिड़िया पे पड़ जाती है जो घोंसले में बैठकर अल्लाह के जिक्र में मगन थी। शिकारी की नजर पड़ी, उसने तीर को कमान में चढ़ाया और निशाना बनाया, और जैसे ही निशाना बनाया उस चिड़िया की तरफ ना, तो चिड़िया की नजर उस शिकारी पे पड़ गई। चिड़िया समझ जाती है ये शिकारी मेरी जान लेने को तैयार है, मुझे मारने को तैयार है, मेरी जान ले लेगा, ये मुझे शिकार करेगा। चिड़िया को डर लगा, उसने सोचा अब तो ये मेरी जान ले लेगा, अगर मैं बैठी रहती हूँ, तस्वीर में मगन रहती हूँ, तो ये मार डालेगा मुझको, ये मार डालेगा, मेरी जान ले लेगा, ये तो मेरी रूह निकाल लेगा, ये तीर चलाएगा, मेरी जान चली जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं उड़ जाती हूँ, और जब उड़ जाऊंगी और चक्कर लगाऊंगी आसमान में, तो ये निशाना बना ही नहीं सकेगा, मैं तो घूमती रहूंगी, ये निशाना नहीं बना सकेगा। चुनांचे वो चिड़िया ये सोच के अपने घोंसले से उड़ती है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, वो चिड़िया थोड़ी देर चक्कर लगाती रही, अचानक फिर उस चिड़िया की नजर पड़ गई आसमान की तरफ। उससे ऊंचाई पे जहां वो चिड़िया उड़ रही थी, उससे थोड़ी ऊंचाई पर एक बाज उड़ रहा था। एक बड़ा परिंदा होता है जिसका नाम बाज है, जो छोटे छोटे परिंदों को शिकार कर लिया करता है, छोटे छोटे परिंदों को मार डालता है, अपनी जगह बना लेता है। चिड़िया ने देखा, अरे ये तो मुझसे ऊंचाई पे बाज चक्कर लगा रहा है, और वो बाज भी इसी चिड़िया को निशाने बनाया हुआ है, वो बाज भी इसी चिड़िया को देख रहा है, मौका मिले तो इसका शिकार करो। चिड़िया समझ जाती है ये बाज मुझे शिकार करेगा, ये बाज मेरी जान ले लेगा, ये बाज मुझे मार डालेगा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं करूं तो करूं क्या। घोंसले में जाती हूं तो वो शिकारी इंसान खड़ा है नीचे, वो मार डालेगा, उड़ती रहूं तो ये बाज मुझे मार डालेगा, मैं करूं तो करूं क्या। दोनों हाल में मेरी जान जाने वाली है, उड़ूं तो भी जान चली जाती है, बैठ जाऊं तो भी जान चली जाती है, अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कलेजा पीट रही है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं उसके दिल की कैफियत को जानता रहा, समझता रहा। अचानक उस चिड़िया ने फैसला किया, बहरहाल जान तो मेरी जानी ही है, शिकार तो हर हाल में मेरा हो ही जाएगा, चाहे बाघ मुझे शिकार करे या इंसान मुझे शिकार करे, दोनों में से कोई एक मुझे जरूर मारेगा, लेकिन मैं क्यों इसकी फिक्र में लगी रहूं। वो काम करती हूँ, जितनी देर भी जिंदा रहूंगी ना, चलती हूँ अपने घोंसले में बैठ के वही करती हूँ जो पहले कर रही थी, वही करती हूँ जो पहले कर रही थी, अल्लाह के जिक्र में मगन हो जाती हूँ। जितनी देर तक जिंदा रहूंगी अल्लाह का जिक्र करती रहूंगी,
जितनी देर तक जिंदा रहूंगी अल्लाह की यादों में मगन हो जाऊंगी। वो चिड़िया आकर बैठ जाती है उस घोंसले में, जैसे ही घोंसले में चिड़िया आकर बैठती है अल्लाह के जिक्र में मगन हो जाती है। अब उसे न उस इंसान का डर लग रहा है, न बास का डर लग रहा है, न शिकारी का डर लग रहा है, बस वो अल्लाह की याद में मगन हो गई है, अल्लाह का जिक्र करती चली जा रही है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं जैसे कि वो जिक्र में लग गई, शिकारी की नजर चिड़िया पे पड़ गई, उसने तीर को कमान में चढ़ाया और तीर को कमान में चढ़ाने के बाद निशाना बनाया, अब इसे शिकार करना है। जैसे ही तीर को कमान में उठा करके उसने छोड़ना चाहा, उसने तीर को कमान से निकलना चाहा, निशाना बनाया, अभी कमान से आधा तीर निकला था, अचानक एक सांप आया और अंगूठे पे डस लिया, अंगूठे पे डस लिया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं एक सांप आया और अंगूठे पे डस लिया, और जैसे ही डसा ना तो वो शिकारी अनबैलेंस हो गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया। जब बैलेंस बिगड़ा तो निशाना उसका चूक गया। वो तीर जो कमान से निकला था अब वो घोंसले में नहीं जाता है, बल्कि वो तीर आसमान की तरफ चला जाता है, वो तीर आसमान की तरफ चला जाता है। वो निशाना बिगड़ा, अनबैलेंस हुआ, बैलेंस बिगड़ा तो तीर आसमान की तरफ गया, और जब तीर आसमान की तरफ गया तो वो तीर के आसमान की तरफ जाने से जो आसमान में बाज उड़ रहा था जाकर उसे लग गया, उसे लग गया तो वो बाज मर गया, तीर के लग जाने से बाज मर गया, सांप के डस लेने से शिकारी मर गया, अल्लाह ने उसको बचा लिया जो अल्लाह के जिक्र में लग गई थी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, फरमाने मुस्तफा, जिक्रे खुदा, नारे तकबीर। उसे बचा लिया अल्लाह ने जो उसकी याद में मगन हो गए।